کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک قاضی ہوا کرتے تھے جن کا نام قاضی یوسف تھا۔ وہ اپنی دانائی، فہم و فراست اور عدل و انصاف میں بے مثال سمجھے جاتے تھے۔ ان کی عقل و حکمت ہمیشہ مظلوموں کے حق میں اور ظالموں کے خلاف کام آتی تھی۔ ایک زمانے میں انہوں نے 3 بڑے مقدمات کا فیصلہ کیا، جن میں پہلا مقدمہ سب سے زیادہ پیچیدہ اور نازک تھا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ 2 آدمی ایک ہی محلے میں پڑوسی کی حیثیت سے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک نہایت نیک دل، دیانتدار اور سیدھا سادہ انسان تھا، جبکہ دوسرا مکار، عیار اور فریبکار تھا۔ مگر نیک دل شخص اس بات سے بے خبر تھا کہ جس شخص کو وہ اپنا بھائی سمجھتا ہے وہ دراصل چالاکی اور دھوکے میں ماہر ہے۔ ایک دن وہ فریبکار پڑوسی سخت مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا اور فاقے کی نوبت آ گئی۔ اس نے سوچا کہ اپنے نیک دل پڑوسی سے کچھ قرض مانگ لیتا ہوں۔ وہ اس کے گھر گیا، مگر وہاں اس کی بیوی نے دروازہ کھول کر کہا، میرے شوہر صبح سے کام پر گئے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ یہ سن کر وہ شخص سیدھا اس کے کام کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ہی اس نے اپنے پڑوسی کو آتے دیکھا۔ وہ فوراً اس کے قریب گیا اور دھیمی آواز میں بولا، بھائی، میں بڑی مصیبت میں ہوں، کچھ دنوں کے لیے 2000 درہم کا قرض دے دو، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ نیک دل پڑوسی نے اس کی بات پر بھروسہ کیا اور کہا، ٹھیک ہے، کل اسی کھجور کے درخت کے پاس آنا، میں رقم لے کر آؤں گا۔ اگلے روز وعدے کے مطابق وہ شخص وہاں پہنچا اور 2000 درہم لا کر اپنے پڑوسی کو دے دیے۔ اس نے کہا، بھائی، اللہ تمہیں اس نیکی کا اجر دے، میں 3 مہینے میں یہ رقم واپس کر دوں گا۔ نیک دل آدمی نے کسی قسم کی تحریر یا گواہی لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس نے نیت صاف دیکھی تھی۔ 3 مہینے گزر گئے۔ نیک دل پڑوسی جب اپنا قرض لینے گیا تو وہ شخص صاف مکر گیا اور بولا، کون سے درہم، میں نے تم سے کوئی رقم نہیں لی۔ یہ سن کر نیک شخص کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے جہاں بھلائی کو برائی سمجھا جاتا ہے اور بھلے انسانوں کو دھوکے میں لوٹا جاتا ہے۔ مگر پھر اسے قاضی یوسف کا خیال آیا، وہ قاضی جو اپنے انصاف، ایمانداری اور گہرے شعور کے لیے پورے شہر میں مشہور تھے۔ نیک دل پڑوسی نے فیصلہ کیا کہ اگر کوئی میرا حق دلا سکتا ہے تو وہ یہی قاضی یوسف ہیں۔ اس نے اپنے دل میں کہا، میں کل ہی قاضی صاحب کے پاس جاؤں گا اور انہیں اپنا حال سناؤں گا۔ قاضی کی دانائی اور انصاف پسندی کے چرچے پورے شہر میں عام تھے۔ جب نیک دل پڑوسی نے دیکھا کہ بحث و تکرار سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تو اس نے خود سے کہا، یہاں بات بڑھانا فضول ہے، بہتر ہے کہ فیصلہ عدالت میں ہو۔ چنانچہ وہ سیدھا قاضی کے دربار میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے اپنا حال بیان کیا اور بتایا کہ کس طرح اس کے پڑوسی نے اس سے 2000 درہم قرض لے کر انکار کر دیا ہے۔ قاضی نے فوراً سپاہی کو حکم دیا کہ اس شخص کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ جب وہ فریبکار پڑوسی حاضر ہوا تو قاضی نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا، تمہارے پڑوسی کا دعویٰ ہے کہ اس نے تمہیں 2000 درہم قرض دیے تھے، کیا یہ سچ ہے؟ بدزبان اور فریبکار پڑوسی نے فوراً کہا، جناب عالی، یہ سراسر جھوٹ ہے، میں نے کبھی اپنے پڑوسی سے کوئی درہم نہیں لیا، یہ مجھ پر بہتان لگا رہا ہے۔ قاضی نے نیک دل شخص کی طرف رخ کرتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ یا تحریری ثبوت ہے جو تمہارے دعوے کو سچ ثابت کرے؟ نیک دل آدمی نے مؤدب لہجے میں کہا، نہیں حضور، جب میں نے اسے رقم دی تھی تو صرف میرا دل ہی گواہ تھا، میں نے اس پر بھروسہ کیا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ میرا حق کھا جائے گا۔ قاضی چند لمحے خاموش رہے، پھر آہستگی سے بولے، اگر تمہاری بات سچ ہے تو جاؤ، اس جگہ کی تھوڑی سی مٹی لے آؤ جہاں تم نے اپنے پڑوسی کو پیسے دیے تھے۔ نیک دل شخص یہ سن کر کچھ حیران ہوا، مگر ادب و احترام کے ساتھ فوراً چل پڑا۔ وقت گزرتا گیا مگر وہ واپس نہ آیا۔ تب قاضی نے اس فریبکار شخص کی طرف دیکھا اور اچانک سوال کیا، تمہارا پڑوسی ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا، جانتے ہو؟ بغیر سوچے سمجھے اس نے فوراً کہا، جناب، وہ جگہ یہاں سے کافی دور ہے، اسی لیے دیر ہو رہی ہوگی۔ قاضی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ فوراً بولے، عجیب بات ہے، تمہیں یہ کیسے معلوم کہ وہ جگہ کہاں ہے؟ تم نے تو وہاں کبھی قدم ہی نہیں رکھا تھا۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی، سچ ثابت ہو چکا تھا۔ قاضی نے اعلان کیا، اب واضح ہے کہ نیک دل شخص کا دعویٰ درست ہے۔ پھر حکم دیا
कि धोखेबाज शख्स को कैद में डाला जाए जब तक वो 2000 दिरहम वापस न करे। दूसरा मुकदमा भी अजीब था। कहा जाता है कि एक बूढ़ा शख्स अपने गधे पर सवार होकर आटे का एक बोरा खरीदने बाजार गया। उसने आटा खरीदा तो बोरा बहुत भारी निकला। इत्तेफाक से वहां एक मजबूत जिस्म वाला आदमी मौजूद था, जिसने नेकी के तौर पर आटे का बोरा जमीन से उठाकर बूढ़े के गधे पर रख दिया। बूढ़ा शख्स खुश हुआ, उसने शुक्रिया अदा किया और गधे को आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चलाया। मगर रास्ते में गधा एक पत्थर से ठोकर खाकर लड़खड़ा गया और आटे का बोरा जमीन पर गिर पड़ा। बूढ़ा उसे दोबारा गधे पर नहीं चढ़ा सका। वो बेबस सा खड़ा सोचता रहा कि अब क्या करे। बूढ़ा आदमी अभी परेशानी में खड़ा ये सोच ही रहा था कि एक जवान और ताकतवर शख्स वहां से गुजरा, मगर उसके चेहरे पर गुरूर और बदसीरती साफ झलक रही थी। उसने रुककर बूढ़े को हिकारत से देखा और तंजिया लहजे में बोला, ए बूढ़े, तुम यहां क्यों रुके हुए हो? बूढ़े ने आंख भरी और कहा, बेटे, मैं बाजार से आटे का थैला खरीद कर घर जा रहा था कि मेरा गधा ठोकर खाकर गिर गया और आटे का बोरा जमीन पर जा गिरा। मैं बूढ़ा कमजोर आदमी हूं, इसे दोबारा गधे पर नहीं रख सकता। नौजवान ने गुरूर से कहा, मैं ये बोरा तुम्हारे गधे पर रख देता हूं, मगर तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगे? बूढ़े ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, मैं तो फकीर सा आदमी हूं। नौजवान ने बोरा उठाया और गधे की पीठ पर रख दिया। बूढ़े ने शुक्रिया अदा किया और गधे पर सवार होकर रवाना होने लगा। मगर वो अभी कुछ ही कदम चला था कि नौजवान ने पुकारा, बूढ़े, तुम कहां जा रहे हो? बूढ़े ने पलटकर कहा, बेटे, मैं अपने घर जा रहा हूं। नौजवान ने फौरन कहा, और वो चीज कहां है जिसका तुमने वादा किया था? बूढ़ा हैरान होकर बोला, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था। नौजवान ने तेज लहजे में कहा, बूढ़े, तुम झूठ बोल रहे हो। जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगे तो तुमने कहा था कुछ नहीं। अब मैं वही चीज चाहता हूं जिसका तुमने वादा किया था। बूढ़ा उसकी बात सुनकर हैरान रह गया, समझ नहीं सका कि वो दरअसल क्या कहना चाहता है। उसने नरमी से कहा, बेटे, तुम्हारा मतलब मैं नहीं समझा। मैंने तो तुम्हारा शुक्रिया अदा किया था। नौजवान ने कहकहा लगाकर कहा, मैं वही चीज मांग रहा हूं जो तुमने कहा था कि कुछ नहीं, और वो चीज तुम्हें मुझे देनी ही होगी। बूढ़ा हैरान परेशान खड़ा रहा। उसने आजिजी से कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। मैं वो कैसे दूं जो मेरा है ही नहीं। नौजवान ने सख्ती से कहा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। तुमने वादा किया था, अब तुम वादा पूरा करो। आखिरकार दोनों काजी के दरबार में पहुंचे। अदालत में खड़े होकर दोनों ने अपना मुकदमा बयान किया। जब काजी ने उनकी बात सुनी तो कुछ लम्हे खामोश रहे। फिर बूढ़े से पूछा, क्या ये दुरुस्त है कि जब उस नौजवान ने तुमसे पूछा कि तुम इसे बदले में क्या दोगे तो तुमने कहा कुछ नहीं? बूढ़े ने मुअद्दिब अंदाज में जवाब दिया, जी हुजूर, मैंने यही कहा था। काजी ने फिर नौजवान की तरफ देखा और फरमाया, और तुम सिर्फ वही चीज चाहते हो जो इस बूढ़े ने वादा की थी, यानी कुछ नहीं? नौजवान ने चालाकी से मुस्कुराकर कहा, जी जनाब, यही वादा हुआ था और मैं वही मांग रहा हूं। काजी के चेहरे पर संजीदगी के साथ एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वो जान गए कि ये नौजवान बदतीनत और नापाक नियत वाला है। वो चंद लम्हे गहरी सोच में रहे, फिर बुलंद आवाज में बोले, चौकीदार, फौरन जाओ और वो गधा अदालत में ले आओ जिस पर आटे का बोरा रखा है। मजमे में सरगोशियां होने लगी। सब हैरान थे कि काजी साहब ऐसा हुक्म क्यों दे रहे हैं। कुछ देर बाद चौकीदार गधे को आटे के बोझ समेत अदालत में ले आया। काजी ने इत्मीनान से गधे को देखा। अदालत में सुकूत तारी हो गया। हर निगाह काजी पर जम गई, क्योंकि सब जानते थे कि अब इंसाफ का वो फैसला सुनाया जाने वाला है जो हमेशा याद रखा जाएगा। काजी ने नौजवान की तरफ गौर से देखा और पुरसुकून लहजे में कहा, ए नौजवान, अगर तुम वाकई वही चाहते हो जो इस बूढ़े शख्स ने तुमसे वादा किया था तो तुम वो लो जो तुम्हारे नसीब में लिखा है। ये कहकर काजी ने नौजवान को हुक्म दिया कि गधे की पीठ से बोरी उतारो और जमीन पर रख दो। नौजवान ने वैसा ही किया जैसा काजी ने कहा। उसने बोरी गधे की पीठ से उतारी और जमीन पर रख दी। तब काजी ने मुस्कुराकर पूछा, जब तुमने बोरी जमीन से उठाई तो तुम्हें इसके नीचे से क्या मिला? नौजवान ने सादा लहजे में जवाब दिया, कुछ भी नहीं। काजी ने फौरन कहा,
बस यही लो, यही है वो जो इस बूढ़े शख्स ने तुमसे वादा किया था। तुम्हारा नसीब भी उसी कुछ नहीं में पोशीदा है। इसके बाद तीसरा मुकदमा पेश हुआ जो बड़ा अजीब और नाजुक था। रिवायत में आता है कि एक शख्स के 3 बेटे थे और हैरत अंगेज बात यह थी कि तीनों का नाम एक ही था, खालिद। बाप के इंतकाल से पहले उसने एक मुख्तसर सी वसीयत लिखी थी जिसमें तहरीर था, खालिद को विरासत मिलेगी और खालिद को विरासत नहीं मिलेगी। जब बाप का इंतकाल हुआ और तीनों बेटों ने वसीयत पढ़ी तो वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी की समझ में न आया कि इस वसीयत का मतलब क्या है। आखिरकार वो काजी के दरबार में जा पहुंचे ताकि इंसाफ हो। काजी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास वसीयत का असल कागज मौजूद है? तीनों ने जवाब दिया, जी हां हुजूर। उन्होंने कागज आगे बढ़ाया। काजी ने वसीयत को बगौर पढ़ा, फिर कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके चेहरे पर हैरत के आसार नुमाया थे। वो जेरे लब बोला, आखिर उस मरने वाले बाप का मतलब आखिर क्या था? काफी देर गौर व फिक्र के बाद काजी के जहन में एक ख्याल आया। उसने दिल ही दिल में सोचा, मुमकिन है कि इन तीनों में से कोई एक उसका हकीकी बेटा ना हो, मगर बगैर सबूत के फैसला करना इंसाफ के खिलाफ था। उसने दरबान को बुलाया और हिदायत दी, तीनों भाइयों को जरा कमरे से बाहर ले जाओ। दरबान ने सर झुकाकर हुक्म की तामील की। काजी तन्हा बैठा सोचता रहा। बाहर से हल्की हल्की हवा अंदर आ रही थी। कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी और काजी के चेहरे पर गौर व फिक्र का अक्स था। वो जानता था कि अब इस मामले को सुलझाने के लिए सिर्फ अक्ल नहीं बल्कि फहम और बसीरत भी दरकार है। ये मामला बज़ाहिर एक सादा वसीयत का था, मगर दरअसल 3 जिंदगियों का फैसला उस एक जुमले में छुपा हुआ था। खालिद को विरासत मिलेगी और खालिद को विरासत नहीं मिलेगी। मुहाफिज ने काजी के हुक्म के मुताबिक तीनों भाइयों को एक एक करके अदालत में बुलाना शुरू किया। सबसे पहले पहला खालिद अंदर आया। काजी ने उसे गौर से देखा और निहायत संजीदा लहजे में कहा, खालिद, अदालत ने तुम्हारे मुकदमे पर बहुत गौर किया है और हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, सिवाय इसके कि तुम्हारे वालिद की कब्र खोदकर उनकी उंगलियों के निशान हासिल किए जाएं, ताकि ये मालूम हो सके कि वसीयत असली है या जाली। क्या तुम इस बात से इत्तफाक करते हो? खालिद के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने बेकरारी से कहा, नहीं हुजूर, मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। मैं अपने बाप को मौत के बाद बेइज्जत होते नहीं देख सकता। मुझे दौलत की कोई परवाह नहीं। मैं अपना हिस्सा अपने भाइयों को देता हूं, मगर अपने वालिद की हुर्मत पामाल नहीं होने दूंगा। काजी ने खामोशी से सर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम बाहर जाकर इंतजार करो। फिर काजी ने मुहाफिज को हुक्म दिया कि दूसरा खालिद अंदर लाया जाए। जब दूसरा खालिद अदालत में दाखिल हुआ तो काजी ने उसे भी वही बात कही, अदालत ने तुम्हारे मुकदमे पर बहुत गौर किया है और हमें कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया सिवाय इसके कि तुम्हारे वालिद की कब्र खोली जाए ताकि उनके हाथों के निशान हासिल करके वसीयत की सच्चाई जांची जा सके। क्या तुम इस बात से इत्तफाक करते हो? दूसरा खालिद भी गमजदा लहजे में बोला, नहीं हुजूर, मैं इस जिल्लत के हक में नहीं। मैं दौलत से महरूम रहना कबूल करता हूं, मगर अपने बाप के जिस्म को कब्र से निकालने की इजाजत नहीं दूंगा। काजी ने गहरी नजर से उसे देखा, फिर आहिस्तगी से कहा, बाहर जाकर इंतजार करो। अब काजी ने तीसरा खालिद अंदर बुलाने का हुक्म दिया। जब तीसरा खालिद दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर बेफिक्री और गुरूर का असर नुमाया था। काजी ने इसी संजीदगी से कहा, खालिद, अदालत ने बहुत सोचा, मगर हमें कोई और तरीका नजर नहीं आया सिवाय इसके कि तुम्हारे वालिद की कब्र खोदी जाए ताकि उनकी उंगलियों के निशानात हासिल किए जा सकें। शायद वसीयत जाली हो। क्या तुम इस फैसले से इत्तफाक करते हो? तीसरा खालिद बेपरवाह लहजे में बोला, अगर आप मेरे बाप को कब्र से निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, कोई हर्ज नहीं। वो जिंदा से ज्यादा काबिले एतबार है। ये सुनकर काजी के चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। इसी लम्हे इसे समझ आ गई कि ये शख्स उस मरने वाले का बेटा नहीं हो सकता। काजी ने फैसला सुनाने से पहले चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से कहा, असल खालिद वो नहीं हो सकता जो दौलत के लालच में अपने बाप को कब्र से निकालने पर आमादा हो। जो शख्स अपने बाप की हुर्मत का ख्याल न रखे वो उसका बेटा नहीं हो सकता। इस तरह काजी ने अपनी ज़हानत, बसीरत और अदल से मामले की असल गुथी सुलझा दी। इस फैसले के बाद काजी का नाम पूरे शहर में मशहूर हो गया।
लोग उनकी फहमो फरासत की मिसालें देने लगे। हर कोई कहता था कि जो काजी अक्ल और इंसाफ रखता हो वो जालिम और मजलूम में फर्क करना जानता है। कोई चालाक आदमी भी उसे धोखा नहीं दे सकता और ना ही जालिम उसके फैसले से बच सकता है। इनके फैसले से लोगों के दिलों में अदल पर एतमाद बढ़ गया और मजलूमों को यकीन हो गया कि वो अपने हक तक पहुंच सकते हैं अगर इंसाफ काजी यूसुफ जैसे हाथों में हो।